पूरी तरह बुनियादी ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ ਬੌਰਨ ਤਾਂ मैं ना बाइबल पढ़ता सी कि आपका जन्म मसीह परिवार में हुआ और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई आप कभी भी चर्च नहीं जाते थे। हाँ जी। और ਜਦੋਂ मैं ਇੱਥੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਵਾਈਟ ਹੈਂਡ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, फास्टिंग करनी शुरू हो गई, बाइबल पढ़नी शुरू हो गई। प्रभु की स्तुति करें, सब तारीफ करें। और अभी जो हम गवाही सुनने जा रहे हैं, जितने भी लोग पहली बार आए हैं खास करके, या फिर आप ऑनलाइन माध्यम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक के द्वारा आप सुनने जा रहे हैं, तो ये लाइफ चेंजिंग की टेस्टमनी है। तो पूरे ध्यान से और पूरे विश्वास से आपने सुननी और रिसीव करनी है कि कैसे प्रभु ने इनके जीवन को बदला। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनेक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पटियाला तो। तो क्या गवाही आपके जीवन की, अपनी गवाही को बताएं। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਦੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ ਬੌਰਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਫਨ ਵਗੈਰਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ, ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਘਰ ਵੜਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1:30 ਵਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਰਚ ਚਲੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਚਰਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਵਾਈਟ ਹੈਂਡ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚਰਚ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਾ ਐਤਵਾਰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ ਔਰ वचन सुनता रहा हमेशा। तारीफ करे सब, प्रभु की महिमा करे सब, और से तालियों के साथ। भाई आपने अपनी गवाही में बताया कि आपका जन्म मसीह परिवार में हुआ और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई आप कभी भी चर्च नहीं जाते थे, आप बाइबल नहीं पढ़ते थे, प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं करते थे। हाँ जी। क्योंकि बाइबल भी कहती है कि बुरी संगति जो है वो अच्छे चरित्र को खराब कर देती है और जो अच्छी संगति है वो आपके बुरे चरित्र को ढक लेती है, वो सही रास्ते पर आपको ले आती है। और चर्च में आने के बाद क्या होता है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम वचन को सुनते हैं, वो वचन जिसमें सामर्थ है, पूरी बाइबल गवाहियों के साथ भरी हुई है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लोग कैसे मुर्दे जिंदा हुए, लंगड़े चले, अंधों को आंखें मिली। तो आज भी वो वचन जिंदा है। जब परमेश्वर के दास उस वचन की घोषणा करते हैं, हमारे लिए प्रार्थनाएं होती है, वो हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आती है। अभिषेक के कारण हमारे जीवन से हर बुरा जुआ तोड़ दिया जाता है। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। और भाई आप इस लाइफ से निकलना चाहते थे, आप प्रेयर करना चाहते थे, बाइबल पढ़ना चाहते, चर्च जाना चाहते थे, मगर आप कभी भी आपसे ये हो नहीं पा रहा था। हाँ जी। और उसके बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती गई, उसके बाद आपकी शादी हुई और शादी होने के बाद भी आप प्रभु से बिल्कुल दूर थे, आप चर्च नहीं जाते थे, प्रेयर बिल्कुल नहीं करते थे। हाँ जी। और उसके बाद आपने बताया कि आपकी वाइफ को पहले पता चला प्रभु के बारे में और अमृत संधु मिनिस्ट्री और चर्च में उन्होंने पहले आना शुरू किया। हाँ जी। और उसके बाद वो आपको जब बताते थे कि तो आप भी चर्च में चलो, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, तो उस समय आप क्या कहते थे अपनी वाइफ से?
मैं कहता था कि मैं चलूँगा कोई बात नहीं, मैं लारा लगाता रहता था मैं चलूँगा। एक दिन मैंने बोला कि चल मैं एक बार चले जाता हूँ यहाँ पे इसके साथ। हम लोग यहाँ पे आए, तो यहाँ पे जब मैं आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरी थोड़ा सा माइंड मेरा चेंज हुआ। मुझे लगा कि यार मैं कहीं और आ गया हूँ। और जब मैं अपने दोस्तों से मिलता था मेरे को फिर मेरा मूड थोड़ा सा अलग हो जाता था, चिड़चिड़ा होने लग गया हौली हौली। तो मैं हौली हौली उनसे मेरा कट ऑफ हो गया और वो मेरी ज़िंदगी से निकलते गए हौली हौली। तारीफ करें प्रभु की। और आपने बताया कि मार्च 2022 में आपने और चर्च में आना शुरू किया, और जब पहली बार आए आपने बताया अपनी गवाही में कि आपको बहुत शांति महसूस हुई, बहुत अच्छा महसूस हुआ उसके। और आपने बताया कि 11 सितंबर 2022 को संडे वाले दिन आप चर्च में आए और आपने अपना वाइट कार्ड बनवाया प्रेयर करवाने के लिए। और उसी दिन परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता के द्वारा आपके लिए लेहन प्रार्थना हुई। हाँ जी। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस लेहन प्रेयर को देखते हैं। भाई, जब परमेश्वर के दास के द्वारा आपके लिए लेहन प्रार्थना हुई तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? क्या महसूस किया आपने अपने शरीर में, अपनी आत्मा में क्या महसूस किया उस समय? उस वक्त मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरा माइंड बिल्कुल हल्का हो चुका है। मेरे अंदर जो चीज़ें थी वो खाली हो चुकी है। मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल अलग हो चुका हूँ, अब हल्का हो चुका हूँ। और उसके बाद आपका जीवन जो था पूरी तरह से बदल गया। हाँ जी। और आपने बताया कि आप पहले बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं कर पाते थे, अब आप कितना समय प्रार्थना कर पा रहे उस लेहन को लेने के बाद? मैं 2.5-3 घंटे प्रार्थना कर लेता हूँ हर रोज लगातार आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। हाँ जी। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। अभिषेक के कारण हमारे जीवन से हर बुरा जुआ तोड़ दिया जाता है जो हम अपने शरीर और अपनी समझ से नहीं कर सकते। बाइबल भी इसके विषय में कहती है, ना तो तेरे बल से ना तेरी ताकत से, जो कुछ होगा मेरे आत्मा की सामर्थ्य से होगा। बस हमें विश्वास करना पड़ता है। परमेश्वर की उपस्थिति में एक कदम बढ़ाने की जरूरत है और परमेश्वर फिर हमें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने हमें चुना है, हमने उसको नहीं चुना। उसने हमारी माँ के गर्भ से हमें चुन रखा है। उसने कहा मैंने तेरा चेहरा अपनी हथेलियों पर बना रखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। चाहे तेरी सगी माँ तुझे छोड़ दे, वो भूल सकती है, मगर मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा प्रभु यीशु मसीह तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। और भाई, अब कैसा लगता है? पहले आपका संसारिक जीवन था, आपने बताया कि इतने साल आपने ऐसे ही प्रभु की उपस्थिति के बिना गुजारे, अब प्रभु की उपस्थिति में चल रहे। पहले वाले जीवन में और अब वाले जीवन में क्या अंतर आपको लगता है? अब मेरे को हंसी सी आती है कि मैं पहले कैसा था तो और अब कैसा हूँ। तो अब मेरे को बहुत खुशी है कि मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया है। और जो लोग यहाँ पे नए हैं और पहली बार आए हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ अपने प्रभु की तरफ आओ और प्रभु आपका वेट कर रहा है और वो आपको ब्लेसिंग देने के लिए इंतज़ार कर रहा है। और यहीं पे आपका इंतज़ार, पुलपिट पे आपकी यहाँ पे गवाही होगी, मेरी जगह आप होगे एक दिन। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी स्तुति करें इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तारीफ करें, जोर से जोर से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।